ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਣਾ-ਕੋਣਾ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਕਾਲ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਹੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਚਮਾਰ ਪਰ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਮਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਖਰੜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਰਤ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਦ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਆਪ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੀ, ਐਸਾ ਅਗੰਮੀ ਸੰਗੀਤ ਆਪ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ। ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਗੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵੈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਰੂਪ ਉਸਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਪੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਜਦ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਭਾਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਮੜ ਉਮੜ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਰ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਔਰ ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਲਾ ਹੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ।
तू हर तरह के कला का ज्ञानी है। तो प्रभु जद भी किसी के अंदर प्रगट होता है कला दे राही होता है। भगत रविदास जो पेशे दे चों चमार ने, जुतियां गंढना, नवियां जुतियां बनाना, चमड़े नूं रंगना और मोए हुए ढोरां दी खल लाणी, ये तो आप दा धंधा है। पर बैठिया बैठिया जद भी आप दे अंदरों प्रभु प्रगट होता है गीत दे राही, संगीत दे राही, रविदास ने अनेकां रागां विच शब्द अपना मधुर कलाम उचारण किया है और सुना सुना के तपदे हिरदे शांत किए। आप दे उत्ते एक प्रश्न होया जद आप भारत की यात्रा ते सन, कहाँ के वासी, कित्थों दे वासी हो, कित्थों दे रहन वाले हो। रविदास का ये जवाब बड़ा आलमाना है, फिलसफाना है। इनू वेख के अंदाजा लाना पैंदा है, नहीं ये तो रब ही बोल रहे, अंदरों परमात्मा बोल रहे, एक चमार दे बोल नहीं हो सकते। हकीकत है ये बहुत वड्डी सच्चाई है कि प्रभु इस महान फिलसफे दे राही, गीत दे राही, संगीत दे राही रविदास के अंदरों प्रगट होया। ये ठीक है कि आप जुतियां गंढदे ने, पर नहीं अगले दा दिल दिमाग भी मधुर अमर संगीत ते गीत दे राही रब नाल गंढ देंदे ने। इस वास्ते कहना पेगा कि तमाम भगतां दा धंधा भी धर्म है। अज हर चौक दे मोची बैठे ते मिलणगे, पर रविदास जैसा चमार खोजना बहुत कठिन है। हर शहर विच ग्वाले और जुलाहे, मामार, कुमार, नाई, धोबी, कसाई, छींबे बैठे ने, पर नामदेव जैसा छींबा लभना बहुत औखी गल है, जो सिर्फ अगलियां दे कपड़े ही नहीं रंगदा, दिल दिमाग नूं भी रब्बी रंगण चाड़ देंदा है। सिर्फ कपड़े ही नहीं कबीर बुनदा, ताना पेटा ही एक नहीं करदा, वो जीव ते आत्मा नूं भी एक करन दा उपदेश ते संदेश देंदा रहिंदा है। इन्हां भगतां दे दरअसल धंधे भी धर्म ने। इन्हां दी कृत दे चों ही कीर्ति दी खुशबू आ रही है, जबकि आम बंदियां दा धर्म भी खिमा करनी अंदर धंधे दी बदबू रखता है, दुर्गंध रखता है। तो भगत रविदास के अंदरों प्रभु प्रगट होया है फिलसफे दे राही, गीत दे राही, संगीत दे राही। जद आप ते प्रश्न होया कित्थों दे वासी हो, तां आप कहंदे ने बेगमपुरा शहर को नाम, मेरे शहर का नाम है बेगमपुरा, मैं उत्थों दा वासी। बेगमपुरा ये कित्थे है? नक्शे च देखांगे तो किधरे नहीं मिलेगा। किसी मुल्क दे एक कस्बे शहर का नाम नहीं है, प्रांत का नाम नहीं है। धरती दे उत्ते जिथे भी चले जाइए गम मौजूद है, दुख मौजूद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिहड़ा गमगीन ना हो, ऐसा कोई परिवार नहीं जिथे दुख ना हो, ऐसा कोई कस्बा ते शहर नहीं जिथे विपतावां ते कलेश ना हो। कोई ऐसा धरती ते मुल्क नहीं है जिथे गम ना होवे। पर रविदास कहंदे ने मैं ते उत्थों दा वासी जिथे गम है ही नहीं। बेगम पुरा शहर को नाव, दुख अंदो नाही तै ठाव। जिस नगरी दा मैं वासी हाँ उत्थे दुख है ही नहीं, उत्थे पीड़ा है ही नहीं, उत्थे कलेश है ही नहीं। हुण रविदास दे दसे हुए इस बेगमपुरे नूं लभीए जमीन दे उत्ते जिथे गम नहीं, दुख नहीं, तो धरती दे उत्ते ते ऐसा लभना बहुत औखा है। जबकि हर बंदा गम दी सेजा ते ही सुता है, हर बंदा पीड़ा ते हौकियां दे च ही जिंदगी बतीत करता है। जैसे कि उर्दू दे शायर का कहना है
कबाबे सीख हैं हम करवटें, हर सू बदलते हैं। जो जल जाता है ये पहलू, तो वो पहलू बदलते हैं। इतनी दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना कलेश है। इस दुख भरे वातावरण विच, इस कलेश भरे संसार विच रविदास कहंदे ने मेरी नगरी दा नाम है बेगमपुरा। उत्थे दुख नहीं है, उत्थे होर भी कुछ नहीं है कि ना तशवीश खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उत्थे कोई चिंता भी नहीं है। मनुखता दे उत्ते दृष्टि वारी है ते हर बंदा चिंता विच जी रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी ऐसा ही फरमान करते हैं, चिंतत ही दिसै सब कोय। सारा जगत चिंता दे विच ही दिखाई दे रहा है, चिंता दे विच ही जी रहा है। चारों पासे देखते हैं मनुख दी अखां विच चिंता, मनुख दे बोलां विच चिंता, मनुख दे चेहरे दी चिंता। उठदियां बैठदियां हौके मनुख दे दसदे ने कि चिंता विच जी रहा है। ते चिंता भविष्य दी ही होंदी है। पता नहीं आने वाला कल कैसा होवेगा, इसकी चिंता। पर रविदास कहते ने मेरी नगरी विच चिंता है ही नहीं। जीवन का एक ढंग है। ये नगरी बार नहीं है। ये शहर किसी नक्शे विच देखांगे तो नहीं मिलेगा। दरअसल एक हालत है, ये मन की एक अवस्था है, एक जीवन का ढंग है। एक आलम का कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। तुम अपना सकूने कल्ब नाश ना कर। जो कुछ होना है वो तेरे कीतियां टलना नहीं, रुकना नहीं। हाँ, तू इतना ही कर सकता है कि जो कुछ होना है इनू खिड़े मत्थे तस्लीम कर ले। जो कुछ होना है इनू खिड़े मत्थे प्रवान कर ले। जो कुछ होना है उन्होंने अपनी झोली विच पा ले। तो रविदास कहते ने जिस शहर का मैं वासी, उत्थे चिंता नहीं है, ना तशवीश खिराज ना माल। खिराज टैक्स। दुनिया दे च रहिंदियां जैसे जैसे बंदे दी धन संपदा वधदी है, माल असबाब वधदा है, तो टैक्स भी वधदा है। तरह तरह दे उन्होंने टैक्स भी देने पैंदे ने, खिराज भी देना पैंदा है। लेकिन रविदास जी महाराज कहते हैं कि संपदा वधदी जा रही है, धन वधदा जा रहा है, परम आनंद वधदा जा रहा है, पर मेरे ते कोई टैक्स नहीं, मेरे ते कोई खराज नहीं किसी प्रकार का भी। हालांकि बैरूनी दुनिया च असीं देखते हैं कि मनुख का सुख वधे, मनुख का आराम वधे, मनुख की दौलत वधे, मनुख की संपदा वधे, ते उहदे नाल ऐ भी कि चिंता वधदी है, दुख वधदा है कि टैक्स वधेगा, खराज देना पेगा। पर रविदास जी महाराज कहते ना तशवीश खराज ना माल। जो माल मेरे कोल है उस ते मैनू खराज नहीं देना पैंदा, टैक्स नहीं देना पैंदा। सवाल इत्थे पैदा होंदा है, माल की है? माल ऐसा है, दुनियावी दौलत नाल उसनू खरीदना बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन है। सोने दियां मोहरां दे के निश्चिंतता खरीदनी बड़ी औखी गल है। सोने दियां मोहरां दे के दया शील संजम बाजार दे चों नहीं मिलेगा। संतोख ते सबर ये किसी दुकान तो नहीं मिलेगा, किसी बाजार दे च नहीं मिलेगा। ये ऐसे गुण ने, ऐसा माल असबाब है जो दिन दुनिया दे बाजार दे च नहीं मिलेगा। स्वयं भगत कबीर ने इसनों इस ढंग नाल बयान किया है कि राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल। ये जिहड़ा पदार्थ, ये जिहड़ा माल तू प्राप्त किया है, ऐ कबीर इस पदार्थ की गठड़ी किधरे खोली ना।
इस माल असबाब की गठड़ी किधरे खोली ना। क्यों कि ऐसा बैरूनी दुनिया विच कोई बाजार ही नहीं है। राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। कोई पटन नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिथे बैठ के इस पदार्थ नूं वेचिया जा सके। भगत कबीर कहते रहे, जे मबा दा इस अमर पदार्थ नूं, इस दैवी गुणा की गठड़ी नूं मैं दुनिया के बाजार विच खोल भी लवां, जैसे कोई हीरिਆਂ नूं वेचे उत्थे जिहड़ा कोलियां दा बाजार होवे, कोई सोना वेचण उत्थे चला जाए जिस बाजार विच लोहा बिकदा है, कोई हीरे लाल पन्ने जवाहरात उस थां ते वेचण चला जाए जिथे इट्टां बिकदियां ने, लकड़ा बिकदियां ने। ये गल सुभाएमान ते नहीं, लेकिन कबीर कहने मैनू ऐसा मजबूरन ये हीरियां दी पंड उत्थे खोलनी पई है जो बाजार ही कोलियां दा है, जो बाजार ही पत्थरां दा है, जो बाजार ही लोहे दा है। मजबूरी है कि जेड़े हीरे मेरे कोल ने इन्हां दा कोई बाजार ही नहीं है। दरअसल दुनिया के किसी बाजार विच भी चले जाइए, सबर कित्थों मंगीए, संतोख कित्थों मंगीए, केड़ी दुकान तो मंगीए, सील संजम दया किस दुकान तो मंगीए। ये दैवी गुणा की दौलत, इस दे कोई बाजार नहीं ने। नहीं पठन नहीं पारखो। आम बाजार विच भगत कबीर कहते जे मैं बैठ भी जावा तो वाकई ये रब दियां महान गल्लां आम बाजार विच ही कहणियां पैंदियां, आम दुनियादारां दे सामने ही रखनियां पैंदियां ने, जिथे वाकई ऐसा देखण दे चाया है कोई पारखू ही नहीं होंदा। क्योंकि कोलियां दी मंडी विच ते कोलियां दे पारखू आणगे, पत्थरां दी मार्केट दे विच पत्थरां दे जानकार आणगे, लक्कड़ मंडी विच लकड़ां दे खरीदार आउणगे ते लकड़ां दे पारखू आणगे। ये किहड़ी लक्कड़ है, चंगी है माड़ी है, इमारती है जलाऊ है, लकड़ां दे ही खरीदार आउणगे लक्कड़ मंडी दे विच। ते लोहा मंडी दे विच लोहे दे ही खरीदार आउणगे। भगत कबीर कहंदे ने इन्हां मंडियां च मैं बैठ गया हीरियां दा व्यापार करन लई, हीरियां दी पंड खोल के मैं उत्थे बैठ गया। अक्सर भगत लोगां ने प्रभु दे गीत उन्हां लोकां नूं सुणाए ने जो प्रभु दे गीत न सुनना चाहते सन ते न ही उन्हां दी सूझ ते समझ सी। यही कारण है कि भगत जो कहते रहे संसार का उन्हां बोलां नाल तालमेल नहीं बैठता रहा, संसार विरोधता करता रहा। तो भगत जी कहते ने कोई पारखू ही नहीं है। मैं बैठा, लोकी कोले खरीदते पे ने, इट्टां खरीदते पे ने, पत्थर खरीद रहे ने, लोहा खरीद रहे ने, लकड़ा खरीद रहे हैं, तो मैं पोटली खोल के बैठा हाँ, मेरी तरफ कोई आमदा ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं, कोई पारखू नहीं। नहीं पठन नहीं पारखू नहीं गाहक, फिर कोई खरीदार ही नहीं, गाहक ही नहीं है। जो चीज मेरे कोल है इसका कोई खरीदार ही नहीं है। देखने दे चाया है एक राजनीतिक दे पिछे जितनी भीड़ चल पैंदी है, एक धनवान दे आले जितनी दुनिया मंडलाउंदी है, अध्यात्म दर्शी दी जीवदियां जी करीबन करीबन संसार ने विरोधता ही की है। उहदे बोलां नाल उहदी जिंदगी नाल जगत सहमत नहीं होया। तो श्री कबीर कहना कोई ग्राहक ही नहीं है। ते जे मवा दा इस बहुती भीड़ दे जो कोलियां दे ग्राहक ने, लोहे दे ग्राहक ने, किधरे एक कर इस हीरे दा ग्राहक आ भी जाए, पारखू आ भी जाए, तो नहीं मोल ओ मुल देण नूं तैयार नहीं, वो मुल नहीं उतारता। समझते है ये हीरा है, परखते है उसको, और वो खरीदार भी है लेकिन मुल नहीं देना चाहता। इत्थे सवाल पैदा होता है
मुल की है। कंचन स्यों पाये नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन ही उसका मुल है। अपना मन भेंट करिए ते राम नाम दा हीरा प्राप्त करिए, पर यह मुल देण नूं कोई तैयार ही नहीं। इस वास्ते खरीदार होंदे होया भी, पालखू होंदे होया भी, सूझ समझ रखदे होया भी कई मनुख इस महान हीरिਆਂ तो वांझे रह जाते ने, क्योंकि मुल नहीं उतारते, मुल जो है नहीं देना चाहते। तो आम इन्हां ब्रह्म ज्ञानियां नूं, भगत लोगां नूं ये अपने बोल ऐन संसारी मनुखां दे सामने रखने पे। श्री रविदास जी महाराज कहते ना तशवीश खराज ना माल, माल मेरा वधदा जा रहा है, धन पदार्थ मेरा वधदा जा रहा है, पर इस ते मैनू कोई खराज नहीं देना पैंदा, इस ते मैनू कोई टैक्स नहीं देना पैंदा। खौफ ना खता ना तरस जवाल। फिर जिस शहर विच मैं रहना उत्थे किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं, डर नहीं। अज तो असीं देखते हैं कि जंगलों के खौफ खत्म होंदा जा रहा है, शहरों के खौफ वधदा जा रहा है। जंगलों के जंगली जानवर घटते जा रहे हैं, शहरों के जंगली जानवर वधदे जा रहे हैं। चार पैरों वाले चौपाए जानवर जंगलों के घटते जा रहे हैं, दो पैरों वाले जानवर वधदे जा रहे हैं। ते अजोके युग के चार पैरों वाले जानवरों का इतना खतरा नहीं रहा, दो पैरों वाले जानवर का खतरा वध गया। प्राचीन समय में चौपाया का खतरा सी, और उन्होंने तो बचाव दे ही सारे उपराले करने पैंदे सन, साधन जुटाने पैंदे सन। सारी सारी रात अग बाल के रखनी पैंदी सी, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता हमला आवर ना हो जाए, या फिर सप्पां तो बचण के उपराले करने पैंदे सन, हाथियां तो बचण के उपराले करने पैंदे सन। अज ते सारे उपराले वसीले ने इस दो पैरों वाले जानवर तो किस ढंग नाल अपने आप को बचाइए ते अपने आप को सुरक्षित करिए। श्री रविदास जी महाराज कहते हैं जिस शहर का मैं वासी, उस शहर दे खौफ नहीं है, डर नहीं है, ना कोई डरांदा है ना कोई डरदा है। दरअसल यही ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं, भय काहों को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुधरे मना, ज्ञानी ताहे बखाना। डराना दुष्टपना है, डरना कायरता है, बुजदिली है। बुजदिली भी परमात्मा तो दूर है, पर जालिम भी परमात्मा तो दूर है। बहुत वड्डा भयानक मानसिक रोग है डरना ते डराना। इस तो भगत उच्चा जीवदा है। तो भगत रविदास जी महाराज कहते हैं जिस शहर का मैं वासी, उत्थे खौफ नहीं है, खता उत्थे धोखे भी नहीं है, उत्थे छल नहीं है, उत्थे कपट नहीं है। जिस दुनिया का मैं वासी हाँ, जिस शहर का मैं वासी हाँ, उत्थे धोखा नहीं है। धोखा देना, धोखा खाना, इन्हां दोहां तो उच्ची जिंदगी है, इन्हां दोहां तो उच्चा जीवन है। ते जवाल कहते ने ढेंदी कला नो, पस्ती नो। उनते आलमा का कहना है हर कमाले राज जवाल। कोई ऐसा कमाल नहीं जो जवाल की तरफ नहीं जाता, कोई ऐसा चढ़ना नहीं जो ढेंदी कला की नहीं तरफ नहीं जाता। ऊचंग तने चंग नाना सोमो चंग। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना, ऊंचा चढ़े सो जाए भयाला। जो ऊपर जा रहा है आखिर थल्ले आएगा, जो उच्चा उठ रहा है आखिर थल्ले आएगा। बच्चा वध रहा है, वध रहा है, ताकत वध रही है, सुंदरता वध रही है, शक्ति वध रही है। अज बुढ़ा हो गया, हुण घटना घटना घट जाएगा। हुण ढेंदी कला, हुण जवाल, शरीर जवाल की तरफ जाते ने, पहाड़ जवाल की तरफ जाते ने, सूरज चंद तारे जवाल की तरफ जाते ने। स्वयं गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, घटनत दीपं घटनत रूपं घटनत रवसस निखत्र गगनं घटनत गिरतर्स खंडन।
घटन ते ललना बरात मोहितन। आखिर इस्त्री का मोह, भरावां का मोह भी एक शिखर ते पहुँच के घटना शुरू हो जाता है। पुत्रां का मोह भी एक शिखर ते पहुँच के घटना शुरू हो जाता है। इस तरीके नाल सूरज भी घटदा है, चंद्रमा भी घटदा है, पहाड़ भी घटते हैं, जमीन भी घटते हैं। ते जो घटदा है आखिर मिटदा है, जो वधदा है वो घटदा है, जो घटदा है वो मिटदा है। ये नियम सब ते लागू है, एक ते नहीं लागू। वो परमात्मा या जो परमात्मा नाल जुड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, ना घाट है ना बाद है, ना घाट बाद होत है। ईश्वर दे अकाल पुरख दे ना घटना है ना वधना है। बाकी हर चीज़ वादे की तरफ जाती है, तो वादे तो बाद फिर घाटे की तरफ जाती है, तो घाटे तो बाद फिर मिट जाती है। वधना घटना मिटना ये नियम हर एक ते लागू है, हर वस्तु ते, हर जीव ते, हर आकार ते। पर श्री रविदास जी महाराज कहते जिस शहर का मैं वासी हाँ उत्थे जवाल है ही नहीं, उत्थे घटना है ही नहीं। तो जब घटना ही नहीं तो फिर मिटना भी नहीं। अमिट दुनिया की प्राप्ति हो जाती है, अमिट संसार, अमिट आनंद, अमिट सुख जो नेस तो नाबूद हो ही नहीं सकता। ना तस्वीस खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गहे पाई, उआ खैर सदा मेरे भाई। उस शहर दे सदैवी खैर बनया है, सदा ही खैर, सदा ही चढ़दियां कला, कदी माड़ी खबर नहीं आ रही। जमीन दे उत्ते कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे रोज कोई ना कोई माड़ी खबर ना आवे, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जिथे माड़ियां खबर अखबारां दे पढ़न नूं मिल जो है ना मिलन। पर श्री रविदास जी महाराज कहते जिस शहर का मैं वासी हाँ उत्थे सदैवी खैर है, कदी कोई माड़ी खबर उस शहर की है ही नहीं। ना तस्वीस खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गहे पाई, उआ खैर सदा मेरे पाई। ए मेरे प्यार उत्थे सदैवी खैर, उत्थे सदैवी आनंद है। मैं उस शहर का वासी, मैं उस नगरी का वासी, और उस नगरी के वासी ही सारे लोग तुसी बनो। हकीकत है बैरूनी दुनिया में जिस मुल्क के सुख ज्यादा होवे वो मुल्क बाकी लोगों लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर देंदे ने। दुखी नहीं, कमजोर लिए, गरीबां लिए अपने मुल्क के द्वार बंद कर देंदे ने। ऐसा असी धरती ते देखते हैं। एक प्रांत दे बहुत कुछ होवे ते बहुत कुछ प्राकृतिक संपदा होवे, वो प्रांत भी दूसरे प्रांत लिए द्वार बंद करता है। एक व्यक्ति को बहुत कुछ हो जाए तो बहुत कुछ दे होंदे आए वो दूसरे व्यक्तियों लिए दरवाजे बंद कर देता है। पर रविदास कहने जिस शहर का मैं वासी हाँ बेगमपुरे का, इस शहर के बूहे हर एक लिए खुले। कोई भी आवे इस बेगमपुरे दे वसे ते आनंद लवे, सुख चैन लवे। मैं सब नूं आवाज मारिया, सब